Iran-Israel war is now casting a spell in Surat of Gujarat as well, which is the biggest hub for diamond manufacturing in India. अभी काम नहीं चलता है, अभी हीरा भी नहीं मिलता है। इजराइल ईरान का युद्ध है, इसके ऊपर डायमंड में बहुत बड़ा फटका हुआ है। दिक्कत तो बहुत हो रही है। पहले हम 26-30 हज़ार का काम कर रहे हैं, अभी 15,000 का भी मुश्किल से काम हो रहा है इधर। India's diamond industry is facing one of its toughest periods in nearly 2 decades. Exports of cut and polished diamonds have sharply declined, squeezing margins and slowing work across Surat. Over 80 labourers have committed suicide in the last 2 years due to the constant constraints on the industry. Iran-Israel war is now casting a spell in Surat of Gujarat as well, which is the biggest hub for diamond manufacturing in India. Experts say that out of 10 diamonds, 9 are produced in Surat. The big organizations, the big diamond merchants say that there isn't much of an impact and they can still stay afloat for coming months, but Print is reporting from a small diamond factory in the insides of Surat, which tells you a completely different picture. We spoke to laborers here, we spoke to the factory owner. He tells us that there is a lot of crisis and this is a situation, this is a precarious situation for them. They say that raw material is sparse, they aren't getting enough raw material to produce diamonds and to actually manufacture them. They also say that the timing of their laborers has had to be reduced. They are forced to reduce the timing of their laborers. Earlier, the laborers used to work 12 hours a day. They used to work 12-hour shifts, and now that shifts have come down to merely 4 to 5 hours. In fact, we are currently reporting from one such factory. We will show you that this is where production is still currently underway. Of course, it's limited, but it is still happening. Sir, कितना impact है? अपना नाम बताइए। विनू भाई। वेणु भाई, अभी जब से ये वॉर हुआ है तब से कितनी दिक्कत चल रही है? काम ही नहीं मिलता, पता तो आधा दिन ही काम मिलता है, पूरा दिन काम नहीं मिलता। पहले कितना कमाते थे आप? पहले 30,000, अब 15,000 रुपया पे। The picture is grim. An average laborer who earns 30,000 rupees is saying that his income has come down by at least 50%. This is not just one person. If we actually show you around here the visuals, we are in the exact factory where we will be taking you through the visuals. You can see this is where a lot of these laborers are currently working. And they also echo the same sentiment that there is a massive cut in their incomes. They all are almost sole breadwinners of their families, and they are unable to now. They are finding it difficult to actually earn a steady income for their families. We'll also speak to some workers here and get a word from them to understand the situation about how they are managing, and if they actually worry that in the coming days their work will further be reduced. But also, viewers, this is not the first time that the Surat Diamond Hub has been impacted. In the past, there was the Russia-Ukraine war, then there was the American crisis, and of course then there was coronavirus, which impacted everyone deeply, but the diamond industry as well, considering this is a luxury industry. While a lot of the trader associations, the large trader associations say that they can stay afloat and there is enough production, the small factories will tell you a completely different story, that they cannot, they are finding it difficult to stay afloat. In fact, we'll open this up, have a conversation with one of these workers here. भैया, क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं? यूपी से दिनेश मौर्य। अच्छा, और कितना अभी काम कम है, क्या दिक्कत हो रही है? काम नहीं होगा तो पैसे कहाँ से मिलेगा मैडम? पहले कितना कमाते थे आप? 20-25 हज़ार कमाते थे। अभी कितना हो गया? 10-15। अच्छा, और अभी ये भी डर है कि थोड़े दिन में शायद नौकरी भी जा सकती है? जा सकती है मैडम। So the threat is that they might lose their jobs and they will not be able to provide for their families. There are several issues that are coming to the fore. Surat is a massive diamond hub with several traders, thousands of traders working here, and all of them say are stuck in a limbo because raw material import, which comes in from UAE, which comes in from Dubai, is stuck because of the Iran-Israel war. Several workers say factories have reduced working days and hours, while traders are struggling to move inventory. रॉ मटेरियल से तो दुबई से आता है। अभी तो हम
यहाँ लोकल मार्केट से खरीदेंगे। हम तो जा सकते नहीं, तो यहाँ तो कोई माल देगा नहीं। तो आप कहाँ से खरीदते थे वैसे? अब हम तो छोटा कंपनी है, तो हम यहाँ लोकल मार्केट से ही लाते हैं। लेकिन जो बड़ा आदमी है वो तो दुबई से के अमेरिका इजराइल से जहाँ से लाते होंगे, तो वहाँ तो अभी जा सकते नहीं, तो अभी जा नहीं सकते, इसलिए तो माल कम आ रहा है। अभी जाएंगे, युद्ध कम बंद होगा तो जा सकते हैं। और काम कैसा है? लेबरर्स के लिए कुछ कमा है क्या? लेबर को आप पहले कितने घंटे बुलाते थे, आप कितने घंटे बुलाते हैं? अब लेबर में तो हम सुबह में पहले 8 से 8 काम करवाते थे, अभी टाइम कम कर दिया। सुबह 9 बजे चालू करते हैं और 11 बजे बंद कर देते हैं। दोपहर के बाद 2:30-3 बजे चालू करते हो और 5-6 बजे बंद कर देते हैं। सैलरी में कितना कट है? टाइम घटेगा तो उसको नंग पर काम करते हैं, तो टाइम घटेगा तो नंग कम बनेगा, तो सैलरी आपको अब घट और जाएगी। सेल्स कितनी कम है? सेल्स बोले तो मतलब बिक्री कितनी कम है सामान की? सामान की तो डिग्री तो अभी तो 50% के आसपास कम पड़ रही है। अच्छा। और अभी अगर ये वॉर और चलेगा तो क्या आपको अपने सारे लेबर को निकालना पड़ेगा? निकालना ही पड़ेगा ना। अभी बहुत दिक्कत तो बहुत हो रही है। पहले हम 26-30 हज़ार का काम कर रहे हैं, अभी 15,000 का भी मुश्किल से काम हो रहा है। इधर कहीं पे भी जाओ, कोई भी कंपनी में, ये पहले टेरिफ आ गया, फिर हीरे में बहुत मंदी है और बहुत सारी मुश्किलें आ रही है। अभी सोच रहे हैं कोई नया धंधा डेवलप हो तो उसमें हम जाए, ऐसी हमारी नौबत आ चुकी है। अभी हीरे में तो बहुत क्या है, दिक्कत हो रहा है अभी। लैब डायमंड पे भी काम करते हैं? हाँ, इधर तो हमका क्या सीवीडी का सब आता है, हीरा के सब वो सब हम काम करते हैं इधर। तो अभी उसमें क्या है कि अब युद्ध चल रहा है, अभी सबको दिक्कत हो रही, तो हम अभी सेठ लोगों को भी दिक्कत हो रही है, तो कारीगर को भी दिक्कत तो पड़ेगी। सब में दिक्कत तो सबको रहेगी, छोटा हो या बड़ा, किसी को। अभी गुजरात से हम कहीं से भी काम पे इधर आए हैं सूरत पे, तो काम तो करना पड़ेगा। मुश्किल से आए हैं तो काम तो करना पड़ेगा। अब क्या है, पहले 30,000 का काम हो रहा था, अभी 15 का हो रहा है। ऐसा सब कुछ है अभी इधर तो। अभी काम नहीं चलता है, अभी हीरा भी नहीं मिलता है। अच्छा, पहले तनख्वाह कितनी मिलती थी? पहला 15-20 हज़ार रुपया का काम होता है, अभी 12-13 हज़ार का काम हो रहा है। घर में कौन कौन है? घर में तीन बच्चे हैं, 2 लोग हम हैं, 5 लोग होते हैं। सबका आप ही चलाते हैं? अब मैं अकेला चलाता हूँ। और अभी ये डर है कि अगर काम अब पूरा भी तो बंद हो सकता है, कुछ ये भी बोला जा रहा है। हाँ, ऐसे बोल रहा है। ओके, अभी डायमंड में दिक्कत ज़्यादा है। आप प्रैक्टिकल ग्राउंड पे जाके देखें तो पता चलेगा। सभी रत्न कलाकार अभी घूम रहे, सभी वो जो पहले जो 25-30 हज़ार का काम कर रहे थे, अभी सब कारीगर है वो 10-15 हज़ार का काम कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पर। अभी ये रशिया यूक्रेन का जो युद्ध था, इसके बाद टेरिफ आया, इसके बाद अभी जो थोड़ा मार्केट स्टेबल हुआ था, लेकिन इसके बाद ये इजराइल ईरान का युद्ध है, इसके ऊपर डायमंड में बहुत बड़ा फटका हुआ है। ये क्राइसिस की वजह से उसकी सब दिक्कत आती है और हमारे रत्न कलाकार पर आती है। अभी कितना % काम कम है? अभी ऐसे कि नहीं तो 30-40% काम कम मिल रहा है क्राइसिस के हिसाब से। सर, ये ईरान US वॉर की वजह से कितना लॉस हो रहा है और कैसे डील कर रही है इंडस्ट्री? मेरा नाम जयंती सावलिया है, GJPC रीजनल चेयरमैन सूरत। ईरान और जो US के साथ जो ये युद्ध हो रहा है, तो उससे ये इंडस्ट्रीज़ में जो हमारा, अगर समझ लो डायरेक्ट हमारा कोई इसके प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा जो मेन मार्केट है वो US है। US में अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से हमारा गुड्स जा रहा है, फ्लाइट रनिंग है। और हमारा जो मेजर मार्केट है चाइना, हांगकांग वगैरह, तो वहाँ भी इजीली एक्सेसिबल है। लेकिन अगर दुबई हमारा है ना, वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जिससे हम लोग वहाँ से बहुत सारी कंट्री कनेक्ट करते थे। तो अगर दुबई डिस्टर्ब होता है तो हमारी इंडस्ट्रीज़ में ये सीधी इफेक्ट आती है। अभी हमारा जो रफ सोर्सेस है वो भी दुबई में था, तो रफ डायमंड का जो मेन हब था वो अभी तक दुबई रहा है। कोई भी माल्स आता था तो वहाँ से फ्लाइट भी कनेक्शन थी, तो जितनी भी माल गुड्स आ रहा था वो वाया दुबई आ रहा था, और ट्रेडिंग भी हब दुबई हो रहा था, तो वहाँ बहुत सारा। तो दुबई में अगर इसकी वजह से प्रॉब्लम आती है तो उसका इफेक्ट हमें ज़रूर से होता है। और ओवरऑल मार्केट जो ये ईरान और GCC कंट्री, सऊदी अरबिया या ये सब कंट्री में हमारा डायरेक्ट एक्सपोर्ट कोई नहीं था, तो इससे हमारी इंडस्ट्रीज़ में भी कोई ऐसी असर नहीं पड़ेगी, सीधी असर पड़ेगी। लेकिन कोई भी युद्ध या कोई भी वॉर होती है तो इसकी बाय प्रोडक्ट कहीं ना कहीं इफेक्ट आना चालू हो जाता है।
आगे जाके भी हमें अगर ऐसा युद्ध लंबा चला तो जैसे कि अमेरिकन के ऊपर भी असर पड़ती, तो वो हमारा ज्वेलरी बाय कम करते हैं, डायमंड बाय करते हैं, तो वो वैसे अलग अलग एंगल से वो इफेक्ट पड़ती है। तो अभी डायरेक्ट हमारे इफेक्ट नहीं है, आने वाले समय में इसका रास्ता भी मिल जाते हैं। जैसे कि अभी दुबई में जैसे रफ डायमंड ट्रेडिंग हो रही है, तो बहुत सारी कंपनी इंडिया में डायरेक्ट अप्रोच कर रही है। जो दुबई से कोई वाया गुड्स ले रहे थे वो अभी हमारे सीधा सूरत से या इंडिया से डायरेक्ट बाइंग करने का अपॉर्चुनिटी ढूंढने का, क्योंकि उस जिसको वो डिमांड है वो डायरेक्ट कनेक्ट करती है। तो इसीलिए हमारे एक अपॉर्चुनिटी भी है। लेकिन युद्ध हर एक पूरे विश्व को एक डिस्टर्ब करती है, तो इसकी इफेक्ट हर एक इंडस्ट्रीज को हर एक में आने वाली है। However, the situation is different for the bigger businesses. Jayantibhai N. Savalia, Gujarat chairperson of the Gem and Jewelry Export Promotion Council, says there is no immediate loss and the companies are finding a solution.